Introduction. My name is Nilima Bisht. I belong to Chamoli, Uttarakhand, but most of my life I've resided in Kota, Rajasthan. My schooling has been from Kendriya Vidyalaya. After that, my graduation, post-graduation, and B.Ed all from University of Kota, Rajasthan. Currently, I'm working as postal assistant in Department of Posts. And apart from academics, I have always been involved in extracurricular activities and sports throughout my educational life. I have been an NCC cadet during my graduation, and I cleared my C certificate with A grade, holding the rank of cadet under officer. That's about me. Thank you. Okay, so who is the Education Minister of India? So currently it is Mr. Dharmendra Pradhan. Okay, and who is the Chairman of National Education Policy? So Chairman Mr. K. Sorry, sir. I'll take a minute. Kasturi Ranjan, Mr. K. Kasturi Ranjan. K. Kasturi Ranjan. Okay. You belong from Uttarakhand state. Yes, sir. उत्तराखंड स्टेट नेम पहले उत्तरांचल था. Yes, sir. तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कौन से ईयर में हुआ था? Sir, I'm not sure, but I can take a guess. It was around 2014. Okay. And summer capital of Uttarakhand? Sir, it is Gairsang now. Okay. It is under which district? In Chamoli itself. Okay. Thank you. Hi Nilima. So you've mentioned about your interest in extracurricular activities and sports. Sports and also being in the NCC, I think it teaches you a lot of valuable lessons that you take with yourself for the rest of your life. So how do you think that will help you in becoming a good teacher in future? Ma'am, I think sports and extracurricular activities are such things which helps in every profession, including teaching. Teaching, like a teacher has to be punctual, and a sports need you to be punctual, to be up to date with the surroundings. Like in sports also, we need to keep ourselves updated about the games and team spirit. Being a teacher, we need to work in an organization. We need to work in collaboration with each other, with students. So this is also one thing. And leadership quality that I have gained from it. Adaptability that I've learned, because we go to various places to play sports and we need to experience various cultures. So that's all. Right. And are you currently employed as a government employee? Yes, ma'am. Central Why do you want to make this shift into teaching? Ma'am, there are various reasons, and first of all, the financial sustainability here, and also I've just completed my B.Ed, and it was during that internship period also that I realized I can be a good teacher. I can connect well with students. So teaching as a profession has means मुझे बहुत inspire किया, so that's why. Sure. So, as you've mentioned a lot about your adaptability, can you state a time or an experience wherein you faced difficulty and how did you tackle? Definitely, ma'am. The very first memory that comes to my mind regarding this is the NCC camp, the first ever camp that we attempted. It was in such a poor building, like we did not have windows. There were open holes, like, you know. So situations like that. But with all of us together, I think now that camp has, in my memory, it is one of my best camps. So we adapted to that situation pretty well. Sure. As you stated that you're a pass out of KV itself. Yes, ma'am. Why? Why KV in particular? Like, don't you want to explore into private sectors? As a teacher? Yeah. Ma'am, because I feel emotionally connected to KV, and I have seen other teachers of my KVs, and I can only think of the emotional reason, because I have never worked anywhere else in teaching field. So this was the first opportunity that came to me, and that's So as I can see and speculate from your personality needs growth, like you strive for growth. Don't you think like working in a government sector gives you a sense of stagnancy to some extent? Ma'am, I think it depends on person to person. Like growth completely, I feel like depends on a person.
You can grow in every field. You can learn everywhere, meet new people. Like currently I'm working in postal department, and there are people who are working there from very long time. But every time you come across various people, other people. So you grow in every way. And teaching is something which give you immense opportunity to grow yourself, because we need to keep ourselves up to dated in front of the current generation. So I think teaching is the best job where you can grow yourself. Thank you. इरेशनल नंबर्स पढ़ा दे, ठीक है। बोर्ड आपके पीछे है ही, आप हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं। और सर जो हैं कन्नड़ भाषा के छात्र हैं, मतलब कर्नाटक से हैं, और मैं कश्मीर से हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कर्नाटक में हो रखा है। तो ऐसे सब अलग अलग परिवेश के छात्र पढ़ाइए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। लंच कर लिया सभी ने? यस मैम। नींद तो नहीं आ रही है ना? लंच करके नींद आती है ना? कोई बात नहीं, आज हम नंबर्स के साथ कुछ खेलने वाले हैं मैथ्स में। ओके, सबको ध्यान से सुनना है और जो मैम पूछेगी उसका जवाब देना है। बस सोने का काम ही नहीं है, आपको जगा के रखने का काम मेरा है। ओके, चलिए नंबर्स के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? कौन कौन से नंबर्स जानते हैं, कोई बताएगा? मैम जीरो। जीरो, ओके। जीरो एक नंबर है, और नंबर है 1 2 3 4 0 सभी नंबर्स है। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ नंबर का टाइप किस तरह का नंबर है? छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है हमने, सब पढ़ के आए हैं। कैसे पास किया पिछली क्लास? जवाब दो। चलो, कौन से नंबर्स पढ़े हमने? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, वेरी गुड। Composite numbers. कंपोजिट नंबर, यस। और होल कोई? नंबर्स। होल नंबर्स, वेरी गुड। ओके, तो हमने अभी तक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स जाते हैं माइनस में, राइट? नंबर लाइन पे देखा है सभी ने? Yes, ma'am. ये एक्सटेंड होती रहती है। अब क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता? आ सकते हैं। आ सकता है। देयर कैन बी मेनी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। कौन सा नंबर आ सकता है? ये एकदम 0 और 1 के बीच में है। क्या नंबर हो सकता है? 0.5। ठीक है, किस तरह का हुआ ये? इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, यस मैम। राइट? तो ये हमारा होता है इस तरह। अब यहाँ से हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे? p/q, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है। इंटीजर्स का कंसेप्ट आपको पता ही है। यस मैम। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। एंड एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, हमारा डिनोमिनेटर दैट इज q शुड नेवर बी 0। व्हाई मैम? ठीक है, क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये फॉर्म हमारी नॉट डिफाइंड हो जाती है। क्यों होता है मैम? नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी को। देखो, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें या एनी नंबर को, बेसिक डिवीजन करके देखते हैं। 0 से हमने डिवाइड करना है 1 को। 0 को कितना टाइम्स करूं कि 1 आ जाए? इनफाइनाइट। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? इनफाइनाइट मैम। आपने ये पढ़ा है, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। ठीक है आप मैम। इनफाइनाइट भी करोगे तो आपको 1 तो नहीं मिलने वाला किसी भी कंडीशन में, ठीक है। राइट? तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 कभी किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं सकता। लेकिन मैम 0 को तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि उसके टेबल में 0 आता है। 0 को डिवाइड कर देगा। 0/0 तो हो जाएगा मैम डिवाइड। 0/0 कैसे डिवाइड करोगे? 0 into 0 is equal to 0। यस मैम। ओके, अब देखो 0 को 0 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास? 0, राइट? लेकिन आप 0 को 1 से करोगे तो भी तो 0 ही आएगा ना? यस मैम, तो Right? डिवाइड हो रहा है। तो 1 भी आप मतलब इससे तो आप ये कह रहे हो कि 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कोई फिक्स तो नहीं दे सकते हम, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। तो मैम आपने तो बताया हमें क्लासेस में कि कुछ इक्वेशंस के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इक्वेशंस के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, Yes, बट क्या ma'am. ये इक्वेशन है?
जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, तो हाँ x जी। की दो वैल्यूज हो सकती है, हाँ जी। तो क्या 0/0 के दो आंसर्स नहीं हो सकते मैम? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है, एक एक्स 0/0 इज नॉट एन एक्सप्रेशन। एक इक्वेशन है। लिसन, देखो बेटा, पहले मैम जो कह रही है वो सुनो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपका क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी, राइट? तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए वो वैल्यू हमारी आती है 2 या -2। बट ठीक है मैम, 0/0 के सामने हम a लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 0/0 बन गई मैम इक्वेशन, a एक इज लीनियर इक्वल टू इक्वेशन बन 0/0। फिर एक a की linear कितनी equation वैल्यूज बन गई। निकली? बहुत सारी आ जाएंगी, अनगिनत आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं मैम, आप ही ने बताया जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, नो सॉल्यूशंस भी होते हैं। ओके, चलो फिर ये क्वेश्चन मैं आपका कल क्लियर करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा पढ़ के आऊंगी, ठीक है। तो बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो खासकर जो चीजें अनडिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड है, उनको लेके सारे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। जैसे पाई, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है मैम पाई कहाँ से आया, क्यों आया, सर मैंने आपका वो वीडियो देख लिया था, बट अभी फिर भी मेरे को क्लिक नहीं हुआ। और जैसे 0/0 है, 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन्हीं से अगर करने पर मल्टीपल आंसर्स आएंगे, तो मैथ का जो बेसिक ढांचा है, जो ये कहता है कि मैथ्स इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। यानी कल को लड़ाई हो जाएगी, कोई बोलेगा 0/0 उसकी गली में 5 होता है, उसकी गली में 6 होता है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब अगर 3 + 4 7 है तो वो 7 है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कल को कि 6 है या 5 है। तो इन 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के आंसर मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। 1 to many functions, many to 1 पढ़ते हैं ना, मतलब केवी में इसलिए भी बनना चाहती हूँ क्योंकि आई एम मोर इमोशनल टुवर्ड्स केवी। हाँ, तो अब मुझे उसमें सर्व करना है एज, क्योंकि उसने मुझे दिया, तो वैसा आप वाला मतलब मैं इसका बोलना बेटर चाहती आंसर ये हो सकता है कि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, हाँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पे अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं, तो मेरे अंदर, मैं खुद उस एनवायरनमेंट से आई थी कि मेरे 5 अलग अलग तरीके के दोस्त थे, मुझे पता था उनसे कैसे डील करना था, तो मैं 5 अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स, 5 अलग अलग कल्चर वाले स्टूडेंट्स से डील कर पाऊंगी। ये कुड हैव बीन बेटर आंसर। और जब भी आप अपने किसी स्टेट के बारे में बोलें, जैसे आपने कहा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन उस स्टेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे राजस्थान में तो अभी 19 डिस्ट्रिक्ट बने, ओके, और आप तो बहुत फेमस सिटी से भी हो, कोटा, ठीक है। कोटा के वो जो है बोलते हैं सांसद का नाम पूछा जा सकता है, हाँ, जो लोकसभा स्पीकर भी हैं। कोटा फेमस किस लिए ये भी पता है। फिर राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट बने, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं, 50, और इस बेसिस पे पूछा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, ओके। जो उत्तरांचल नाम था वो आपका 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तरांचल बना था। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। 2007 उत्तराखंड 1 जनवरी 2007। आप 7 साल, नाम चेंज 2007 में हुआ है, बना उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ वो 2000 में हुआ। ओके सर। और आप तो चमोली से हो, तो आपसे क्वेश्चन वो थे ना, चिपको आंदोलन, गौरा देवी, शी बिलोंग टू चमोली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमोली लार्जेस्ट में उत्तरकाशी है शायद, हाँ, चमोली लार्जेस्ट नहीं है। So, I love your personality. I love the voice modulation and the intonation of your deliverance. Basically, आपको pedagogy पे थोड़ा सा work करने की ज़रूरत है, as sir has already mentioned, because you were giving interview in English, so I wanted to shed some light on certain things. आप जब sir को cater कर रहे थे तो आपने it do not बोला था, like whatever language you use, make sure you do justice with the same. And आपने बीच में एक मुझे cater करते वक्त तो बोला था, I तो, so like you could just avoid this method. Okay, thank you. I think it was good overall. The presentation was good.
बस एक था, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बेस अपना इंग्लिश का क्रिएट कर दिया था, सो दैट गिव्स अस एन इंप्रेशन दैट यू आर वेल वर्स्ड विद इंग्लिश एंड यू आर वेरी फ्लुएंट विद इट। बीच में कोशिश करो फिर स्विच ना करो दूसरी लैंग्वेज में, या तो पहले ही आप आगे हिंदी में बात शुरू कर दो, फिर हम आपसे वैसे ही बात कर लेंगे, क्योंकि पहले काफी आई थिंक फ्लुएंट अच्छी फ्लो था, फिर बीच में एकदम से जब इन्होंने आपसे पूछने शुरू किए क्वेश्चंस तो एक्सप्लेनेशन सर ने बेटर करने हिंदी के में लिए बोला, सो आई थॉट कि मुझे भी अब हिंदी में जवाब देना चाहिए मिक्स आज करके। वैसे कोशिश आई थिंक ये रहनी चाहिए कि एक आपने जो एक लैंग्वेज पकड़ी है एक इंटरव्यू में, आई थिंक मे बी यू शुड ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड विद यू। ओके। सो मोस्टली वैसे हम आपको देख के ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ओके। बस स्विच ना करो लैंग्वेज में आई थिंक। मतलब अगर हमसे हिंदी में भी क्वेश्चन आए तो हम इंग्लिश में ही जवाब दें, ऐसा बेटर मतलब है? आई थिंक लैंग्वेज स्किप मैंने नहीं देखा है किसी इंटरव्यू में, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप बहुत कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस आप जैसे मेन पॉइंट जिसमें ये है कि आप आप अपने आप को अच्छे से बोलते explain कर समय फिर आप ग्रामेटिकली दाएं बाएं होती चली गई तो उससे पॉइंट चला गया। मतलब इंग्लिश में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में अगर आपने मैंने हिंदी में पूछ लिया और आपने हिंदी में बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अब उसके बाद फिर से इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप फिर से थोड़ा सा गड़बड़ आ गई, डर गई, मतलब स्विच ऑफ लैंग्वेज में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लेट इट भी, छोड़ दो। वो वही लग रहा था कि जब आप हिंदी में स्विच किए तो मे बी बीच में आप सेंटेंसेस को वापस इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट वो ग्रामेटिकली आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, तो वो दिख रहा था इंटरव्यूअर को कि ये अब फ्रेम नहीं कर पा रही है तो वापस हिंदी में स्विच कर रही है। ओके। है ना, थोड़ा सा उस चीज पे वर्क कर लीजिए। ओके। बाकी ओवरऑल इट वाज गुड, आंसर्स वर क्रिस्प एंड डायरेक्ट एंड द इंट्रोडक्शन वाज गुड। आपका अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़िया है सब काफी, ओवरऑल वाज नाइस। एग्ज़ाम में बच्चे का नकल करने की बात पूछी थी, तो बच्चे का पेपर वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और दूसरा पेपर देंगे। अगर नकल पकड़ी गई है तो वो उस पेपर के साथ ही रख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर अलग होता है और सब्जेक्ट टीचर अलग होती है। सब्जेक्ट टीचर ही उस पेपर को चेक करेगा, है ना। तो वो जब दोनों चीज़ें, वो पेपर साथ जाएंगे, सब्जेक्ट टीचर अपने आप उसमें देख लेगी कि बच्चे ने नकल की भी है या बच्चा कितना होशियार है, या बच्चे अपने मन से कितना है, वो टीचर यूज टू होती है बच्चे के हर व्यवहार से। फिर बच्चे का टर्मिनल टेस्ट का एक सब्जेक्ट का पेपर बीमारी के कारण छूट गया, तो उसके लिए मेडिकल होता है, तो वो मेडिकल लगाया जाता है, तो वो फिर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो उसको छूट मिल जाती है। और क्लास रजिस्टर टीचर के पास जो होता है उसमें बच्चे का नाम होता है, फादर्स नेम होते हैं, वैसे कॉलम बने होते हैं, लेकिन टीचर डायरी में आप अलग से ये सारे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हर बच्चे की पर्सनल नोट करके रख सकती है, जो आपको पढ़ाने में भी और आगे बच्चे के को क्या चीज़ सिखानी है, उस किस चीज़ में वो कमी है, उसमें पढ़ने में लिखने में है या उसको पढ़ने में है, या आप जो होमवर्क देती हैं वो कुछ टाइम पे करके नहीं लाता है, या क्लास वर्क वो करता है होमवर्क नहीं करके लाता, या याद नहीं करता, वो सारी चीज़ें आप बच्चों का एक रिकॉर्ड बना देंगे, तो टीचर डायरी में वो अलग पेज बना सकती हैं। तो इस तरह बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर। मैं भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपके लिखे थे, बताना ही भूल गया। आपका पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है, यू वर काम थ्रू आउट। आपको बहुत परेशान किया, डेमो में भी परेशान किया, लेकिन आप यू वर काम। और अब दूसरी एक बात आपकी सही थी कि आप अपना पॉइंट रख पा रहे थे इजीली काफ़ी। जब आप आई तो आपका इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त था, लेकिन वो जैसे ही वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस की तरफ हम गए, टीचिंग स्किल्स की तरफ आपके गए, तो वो फिर अब क्योंकि आप उस चीज़ को छिपा तो सकते नहीं हो, अगर कोई आपसे कोई फैक्ट पूछेगा तो वहाँ आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। बाकी मतलब आपका लेकिन बोलने का तरीका, लहजा, फर्स्ट इम्प्रेशन सब टॉप नॉच था। बस आप अपनी मैथ्स पेडागोजी को सही कर लो, आई थिंक यू वुड स्कोर अमंग द बेस्ट। थैंक यू सर। Do सर you have डेमो any टीचिंग से queries? एक आपका वो क्वेश्चन था कि जैसे आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो, हाँ, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, Yes, सीएचएसएल के थ्रू। अभी जस्ट अप्रैल में ज्वाइन किया है, अप्रैल, अच्छा अभी ज्वाइन अभी करा है। जस्ट। ओके। डेमो का आपका डेमो में भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने डेमो भी दे के दिखाए हुए, डेमो की भी वीडियोस रिकॉर्ड करके दी हैं। अभी हाँ, मतलब देखी मैं नहीं काफ़ी चीज़ें भूल गई। नहीं देखी देखी हैं, है। बट यहाँ पे करना भूल गई, जैसे डेट, टॉपिक, मतलब हाँ, कुछ भी प्रॉपरली नहीं हुआ। तो इसीलिए आप ना जब भी कोई टॉपिक दें, मैंने अपने डेमो को देते हुए भी बताया था कि जब Yes. कोई टॉपिक दें तो 2-3 मिनट ले लो आराम से, पानी पी लो, पानी वानी पी लिया, आसपास की चीज़ों को देख लिया, फिर आप शुरू करो। और दूसरा,
एक बार जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सब में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है वो जरूर पढ़ना है कि उसमें चैप्टर शुरू कैसे किए गए, कोई कहानी के थ्रू जोड़ देना है, ये करना। और टॉपिक को सबसे पहले लिखो बोर्ड पर, जो भी आप करा रहे हैं। जब आप बोर्ड की तरफ जाएं, जब जैसे आपने अब सोच लिया कि अब लिखना है, तो बातों बातों में आप टॉपिक लिखेंगी। दूसरी चीज आप ये करेंगे कि डेट, मैंने बताया था कुछ ना कुछ रिलेट करके टॉपिक से। कुछ टॉपिक से रिलेट करके लिख दिया कि ये देखो इंटीजर्स है ना सारे डेट में,